Very good morning, students. Today we will start with chapter 4 NCERT history book that talks about Mughal Empire. So in this chapter, in this today's video, we will be focusing on the various points which I have jolted down on the board. We will be studying who were the Mughals. We will read about Mughal ancestry. We will primarily focus from Babur till Aurangzeb. We will study about their military campaigns, what was the Mughal tradition of succession, and what were the Mughal relations with other rulers. In this video, we will be specially talking about or focusing on the Akbar's policy. We will have a close look on how Akbar worked and what made him known as a great king. Later on, we will start on Jahangir also. So let's begin with the video, and trust you all are having your NCERT book also along with you, so that if we can read out the paragraph, you can relate with that topic. So it was during the 16th and 17th century that the Mughal Empire got established. I want you to have your books along with this so that we can also read out. I am on page number 45, which says that the Mughals created an empire and accomplished what had hitherto seems possible for only short period of time. From the later half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century they controlled nearly all of the subcontinent. They imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. Even today, the Prime Minister of India addressed the nation on Independence Day from the ramparts of the Red Fort in Delhi. That was the residence of Mughal emperors. तो अगर हम इंडिया की बात करें, सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो मुगल एम्पायर जो था, मुगल इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहा है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव रहा है, क्योंकि बहुत मतलब अप्रॉक्सीमेटली इतने सारे साल जो उन्होंने राज किया, तो हर देश के हर कोने कोने पर आपको मुगल एम्पायर की उनकी छाप हमें इजीली दिखने को मिलती है, और उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूव भी किया. बीइंग इन लाइक फॉरेनर्स टू दिस लैंड, दे हैव क्रिएटेड such a vast empire for themselves. They ruled this country for such a long period of time. So we need to see in detail what and how all this happened. So we are going to start with the question, who were Mughals? First of all, let us understand who were Mughals. The Mughals were descendants of two lineage of rulers. From their mother's side, they were descendants of Genghis Khan, who was the ruler of Mongol tribes, China and Central Asia. He was basically the rival of Uzbeks from Uzbekistan. Genghis Khan की जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कुछ भी बहुत पॉजिटिव उसके बारे में हमें पढ़ने को जो है वो नहीं मिलता, सुनने को जो है वो नहीं मिलता. Why being? Because the memories with Genghis Khan was associated with the massacre of innumerable people. बहुत ही हिंसक और क्रूर टाइप का शासक जो है चंगेज खान माना जाता है, और उसको बेसिकली ही वाज फ्रॉम मंगोलिया, चाइना एंड सेंट्रल एशिया उसके एरियाज थे, और उसने बहुत सारे एरियाज जो थे कैप्चर किए. ही वाज लाइक अ रुथलेस काइंड ऑफ किंग, जिसकी जो मेमोरीज हैं वो बहुत ही ज्यादा भयंकर हैं. और कहीं ना कहीं एक यही कारण है कि मंगोल्स अपने आप को कभी भी चंगेज खान के साथ जो है वो रिलेट नहीं करना चाहते थे. दे नेवर लाइक वांटेड टू गेट देमसेल्फ लिंक्ड विद दिस चंगेज खान, जबकि अपनी मदर की साइड से वो चंगेज खान को ही बिलोंग करते थे. ऑन द अदर हैंड, फ्रॉम द फादर साइड, from the father ancestry, they were from Iran and Iraq, and they were Taimurs. Like they attacked India. Tamur attacked India in 1398 and captured Delhi.
He founded Timuride dynasty, but he fled back, and it was again with Babur that India had invasions and the Mughal empire got established. यानी कि यहाँ पर हमने क्या समझा, हमने पढ़ा कि मुगल एम्पायर जो था उसकी दोनों साइड की, मदर साइड और फादर साइड से वो कहाँ से बिलोंग करता था. मदर साइड वो जो थे वो चंगेज खान को बिलोंग करते थे, जो कि मंगोलिया का शासक था और एक बहुत ही क्रूर शासक था, जिसको इतना क्रूर था, उसके साथ इतना ज्यादा बैड नेम अटैच था कि मुगल्स जो थे वो उसको अपने साथ एसोसिएट ही नहीं करना चाहते थे. जबकि दूसरी साइड जो मुगल थे, जो फादर साइड थी, वो अपनी तैमूर एंसेस्ट्री पर उनको बहुत प्राउड था. उनके जो ग्रेट एंसेस्टर थे, तैमूर थे, उन्होंने दिल्ली को ऑलरेडी 1398 में कैप्चर किया था. बट लेकिन वो वहां से वापस मतलब रिबेल या प्रोटेस्ट की वजह से वो वापस वहां से चले गए थे. तो तैमूर्स को वो बहुत ग्रेट मानते थे, अपने फादर साइड को, और हमेशा वो अपनी पिक्चर्स या पेंटिंग, जो भी मिनिएचर्स वगैरह आपको दिखने को मिलेगी, दे वर लाइक वेरी प्राउडली शोइंग देयर तैमूर लाइनेज. वो उसको दिखाते थे. जैसे कि फिगर, इफ यू गो थ्रू फिगर 2 on page number 46, you will see a miniature painting over there that is dated back from 1702 to 1712 तैमूर की है, जिसमें वो अपने डिसेंडेंट्स को दिखा रहे हैं, मुगल एम्पायर्स को. तैमूर खुद सेंटर में दिखा रहे हैं और उनके आसपास जो है जितनी भी उनकी लाइनेज थी, लाइक उसके ग्रेट ग्रैंडफादर मीरन शाह बैठे हैं, फिर उनके ग्रेट ग्रैंडफादर भी हैं सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, देन इस ग्रैंडफादर अबू साद, और फिर उमर शेख जो बाबर के फादर थे. इस तरह से उसके अंदर बाबर, अकबर, शाहजहां, इस तरह से सारे जो है उन्होंने, तैमूर ने ऑर्डर वाइज अपने आसपास एक पेंटिंग के अंदर जो है इस पेंटिंग के अंदर डिपिक्ट किया गया है लाइनेज उनकी. तो बड़ा प्राउडली ये हिस्ट्री, ये कहाँ से हिस्टोरियंस ने क्यों बनाई है? मे बी उन्होंने बनाई थी बिकॉज द एम्परर और द किंग हैव ऑर्डर देम टू डू सो, बिकॉज वो अपने आप को रिलेट कर रहे हैं, समझाने के यहाँ पर व्हाट इज द मेन थिंग विच वी नीड टू फोकस, दैट दे वर वेरी प्राउड ऑफ देयर तैमूरिद एंसेस्ट्री एंड दे ऑलवेज वॉन्ट टू डिपिक्ट इट थ्रू दे वॉन्ट दिस थिंग टू बी नोन टू द कमिंग जनरेशन. तो इस तरह से उन्होंने जो है ये पेंटिंग्स के थ्रू शुरू किया हुआ दिखा रखा है. सो जो फर्स्ट 4 हैं इसके अंदर जिनकी हमने बात की, लाइक मेरन शाह, सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, they were not greatly mentioned in the history, and we start mainly with Babur. And on page number, let me see the page number, on page number 48 and 49, you will you will read about the Mughal empires which have been focused greatly from history point of view. So starting from Babur, then Humayun, Akbar, Jahangir, Shahjahan, and then Aurangzeb, we need to read about them in detail. So let's start with Babur, because why we are focusing till Aurangzeb, because after Aurangzeb there was like a succession clash between the successors of Aurangzeb, and slowly and gradually the Mughal dynasty vanished, and it was the servants of the Mughal dynasty who gained power. Like slowly Hyderabad and Awadh became separate. After then slowly different provinces separated out and they started as independent kings. तो हमें फोकस यहाँ पर करना है, अकबर से लेके औरंगजेब तक हम फोकस करेंगे. हम ये भी समझेंगे later on in your higher classes you will also read in detail about the decline of the Mughal empire and how independent provinces come, how the British invasions happened, and how the European invasions happened, and how they captured India, and how Mughal empire came to an end. But this you will read in your higher classes. In this particular class and in this particular chapter we will be focusing on these Mughal emperors in detail. And in today's video we will focusing more on Akbar, but we will start with Babur. So let's start with Babur. बाबर से स्टार्ट करते हैं हम. बाबर सक्सीडेड द थ्रोन एट अ वेरी अर्ली एज, दैट वाज 13 years. ही वाज द रूलर ऑफ फरगहान. ड्यूरिंग एट दैट टाइम
However, he has to face like constant attack from the Uzbeks. Uzbeks के साथ इनका हमेशा से वैर रहा है और Uzbeks जो थे हमेशा इनके लिए एक थ्रेट रहे थे. As a result, he fled from his seat and he fled. He seized back Kabul in 1504 and 1516. He defeated Ibrahim Lodi and his Afghan supporters at Panipat. तो आप देखिए कि ये 13 साल की उम्र से ही इसका जो था, ये आप कह सकते हैं कि ये जो जंग थी इसकी जिंदगी में शुरू हो गई थी. और इंडिया के अंदर जो हम इसकी फेमस जो इसके वार है वो हम अगर डिस्कस करें तो 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ इसका जो वॉर हुआ था. आपको पता है कि दिल्ली जो थी कंट्रोल की जा रही थी. लास्ट जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी जो डायनेस्टी थी वो दैट वाज लोदी डायनेस्टी. तो ये उसी लोदी डायनेस्टी के इब्राहिम लोदी के साथ इसका वॉर हुआ 1526 में. लोदी के साथ अफगान सपोर्टर्स भी थे. रिमेंबर दिस, अफगान सपोर्टर्स वर ऑलवेज अ थ्रेट फॉर मुगल एम्पायर. तो इब्राहिम लोदी और अफगान्स ने मिलकर ये पानीपत की लड़ाई लड़ी थी बाबर के साथ. देन इन 1527 ही डिफेटेड राणा सांगा हु वाज अ राजपूत रूलर. और ये युद्ध तो था खानवा के युद्ध से बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ. Then in 1528 he again defeated the Rajputs at the Battle of Chanderi. So during that time there was a constant clash between the Mughals and the राजपूत. हमेशा से जो था मुगल और राजपूत के बीच जो था एक तनातनी या जो एक वॉर थे वो चलते रहे थे. तो रिमेम्बर कि आपको हायर क्लासेस में थ्रू आउट योर हायर स्टडीज यू हैव टू रिमेम्बर अबाउट दीज वॉर्स विच बाबर लाइक हैड फॉट. तो इनको बहुत ही ज्यादा आप सीरियसली लीजिएगा. और ये जो बाबर के ये जितने भी ये लड़ाइयाँ इसमें लिखी हैं 1526 की इब्राहिम लोदी के साथ, 1527 राणा सांगा के साथ, युद्ध ऑफ खानवा दैट इट वाज कॉल्ड वॉर ऑफ खानवा. देन इन 1528 इट वाज वॉर ऑफ चंदेरी. सो यू नीड टू रिमेम्बर दीज वॉर्स, देयर डेट्स एंड बाबर ने किसके साथ लड़े हैं. ये आपको हायर क्लासेस तक आपको याद ही रखने पड़ेंगे. एंड देन बाबर के बाद नेक्स्ट वॉज हुमायूं, जिसका जो स्पैन है वो 1530 से लेके 1540 तक और 1555 से 1506 तक था. और बाबर ने जो था ही वर्कड अकॉर्डिंग टू हिज फादर्स विल. उसने अपने फादर की विल के अकॉर्डिंगली काम किया था. एंड जब बाबर की डेथ हो गई तो ही डिवाइडेड हिज inheritance according to his will and he divided the provinces within his brothers. उसने अपने ब्रदर्स के अकॉर्डिंगली जो था अपने ब्रदर के बीच में अपने फादर की विल के अकॉर्डिंगली उसने जो था राज्य को जो था बांट दिया. यहाँ पर आई नीड टू टेक यू टू द पेज नंबर 50 where you will read about Mughal traditions of succession. Please be on page number 50. It's a small paragraph. Let's read about Mughal ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन. आप यहाँ पर समझने की बात देखिए कि क्या मैं यहाँ पर समझाना चाह रही हूँ. द मुगल डिडंट बिलीव इन द रूल ऑफ primogeniture, that was where the eldest son inherited his father's estate. दैट इज फादर के रूल था. यहाँ पर जो प्रथा चल रही थी सब कॉन्टिनेंट में कि राजा का बेटा जो है वो राजा बनता था, खासकर बड़ा बेटा जो था वो राजा बनता था. लेकिन मुगल्स इस ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन पे बिलीव नहीं करते थे. जहाँ पर बड़ा बेटा फादर की एस्टेट को इनहेरिट करता है उसके लिए ये टर्म है प्रीमोजिनेचर. इस सक्सेशन को हम बोलते हैं. लेकिन मुगल्स इसमें बिलीव नहीं करते थे. उन्होंने इसकी जगह जो था वो उनका जो ट्रेडिशन था सक्सेशन का वो था कॉपर सिनेरी इनहेरिटेंस, जिसके अंदर वो क्या था कि जो इनहेरिटेंस है वो सभी बेटों के बीच में बांट दी जाती थी. तो उन्होंने इसी कस्टम को फॉलो किया. इसी कस्टम को फॉलो करते हुए हुमायूं ने बाबर का जो इनहेरिटेंस था उसको अपने ब्रदर्स के बीच में बांट दिया. तो दिस वाज व्हाट आई वांट यू ऑल टू रीड आउट.
that is, let's read it once again. The Mughal didn't believe in the rule of primogeniture, where the eldest son inherited his father's estate. Instead, they followed the Mughal and Timurid custom of cooperacy inheritance, or a division of the inheritance amongst all the sons. Okay, so now you understood what is the division of inheritance. किस तरह से, दो तरह से हो सकती है. So Babur had followed this particular coopernary system in which he has distributed the power among all his brothers. Then let's talk about the war he has fought. He was defeated by Sher Shah Suri in the Battle of Chausa and later in the Battle of Kannauj. That happened in 1539 and 1540 respectively. And then after being defeated, he fled back to Iran to his father's ancestry from Taimur. उसके फादर तैमूर जो थे वो ईरान से थे, और जब वो ये दो युद्ध जो था शेरशाह सूरी के साथ बैटल ऑफ चौसा जो कि 1539 में हुआ और बैटल ऑफ कन्नौज जो कि 1540 में हुआ, वो हार गया. देन ही फ्लेड बैक टू ईरान. देयर ही रिसीव्ड द हेल्प फ्रॉम साफिद शाह. साफिद शाह से इसने हेल्प ली, जो कि उस टाइम पे रूलर था ईरान का. एज अ रिजल्ट ही रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555. दोबारा से वो दिल्ली को कैप्चर करने में सक्सीड कर गया इन 1555 में. हाउएवर ही डाइड द नेक्स्ट ईयर. 1556 में एक्सीडेंट में उसकी एक डेथ हो जाती है, जो कि एक बहुत ही यंग एज में उसकी डेथ हो गई. एंड आफ्टर हिज डेथ इट वाज अकबर हु वाज जस्ट 13 ईयर ओल्ड हु बिकेम एम्परर. और अकबर के डिजाइन को हम जो है 3 पीरियड्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, विच वॉज, आई वुड लाइक यू टू सी पेज नंबर 48. और यहाँ पर आप देखेंगे कि इन 1556 टू 1570 अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द बैरन खान. लेट मी टेल यू कि बैरन खान जो था ये ही वॉज अ बिग सपोर्टर ऑफ मुगल एम्पायर. और हुमायूं की डेथ के बाद, क्योंकि सिंस ही वॉज, अकबर वॉज वेरी यंग like when his father died, so it was Baram Khan who guided him, and it was Baram Khan's idea to let him occupy a huge part of India, जिसकी वजह से he started various campaigns against the Suris and the Afghans, and then he suppressed the revolts from the Uzbeks and his half brother who was Mirza Hakim. सो इसके अकबर के रिजाइन के अंदर, अकबर के एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैरन खां का जो था वो बहुत ही बड़ा हाथ था. बट इन अगर हम बात करें 1556 और 1570 की, तो अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ बैरन खान and other members of his domestic staff. He started military campaigns against the Suris, Afghans, against the neighbor kingdoms of Malwa and Gondwa, and suppressed the revolt of his half brother Mirza Hakim. आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि बाबर के जाने के बाद हुमायूं ने उसकी बाबर की एंसेस्ट्री को इक्वल पार्ट्स में बांट दिया था. तो ये जो मिर्जा हाकिम है ये इसका हाफ ब्रदर था, राइट. इसी तरह से कि उसकी चाचा वगैरह का जो दिया गया था लैंड, वहीं से उसका जो एक हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम, उसका स्टेप ब्रदर जो था, हाफ ब्रदर जो था, वो भी उसके अगेंस्ट था, और वो भी बार बार रिवोल्ट करता रहता था इसका हाफ ब्रदर. और उसको सप्रेस करने में भी, उसबेक्स को सप्रेस करने में भी इसने बहुत ज्यादा वर्कआउट किया. देन इन 1568 he captured the capital of Chittor, defeating the Sisodias, and in 1569 he won over Ranthambore. तो बहुत सारी जो कैंपेन्स इसने किए हैं, आपको एक्सटेंट देखने को मिलेगी. मैप, if I show you the map on page number 50, you will see the extent of the Mughal Empire, and it is basically during the reign of Akbar and Aurangzeb. आप यहाँ देखोगे कि from Kandahar till Mysore in south, आप देखिए वहां तक, अहमदनगर अदर, यहाँ तक इनका जो था ये फैल चुका था रीजन जो था इनका. तो आप देख रहे हैं कितना वास्टली इसने जो था एक्सपेंशन किया. Now coming back on page number 48, we will next, like in 1517 to 1585, he had his military campaigns in Gujarat that were followed by campaign in east in Bihar, Bengal, Odisha.
एंड मिर्जा हाकिम की तरफ से इसको जो थ्रेट मिल रही थी उसको भी ये सप्रेस कर रहा था. थर्ड जो इसका मिलिट्री कैंपेन जो हम हिस्ट्री जो हमें दिखाती है, दैट वाज बिटवीन 1585 to 1605, that is expansion of the Akbar's empire. Campaign were launched in the northeast. Kandahar seize किया from साफिद जो थे जिन्होंने रिमेम्बर हेल्प की थी इसके जो फादर थे हुमायूं, उनको रिट्रीव करने में दिल्ली, उन्हीं के एरिया को इसने कैप्चर किया, कंधार को. इसने इंडिया में कश्मीर को एनेक्स किया. काबुल में भी इसने मिर्जा हाकिम की डेथ के बाद वो भी इसके अंदर आ गया. और अगर हम दक्कन साउथ में देखें तो दक्कन, बेरार, कंधार, पार्ट ऑफ अहमदनगर, ये सब इसने एनेक्स कर लिए थे. तो मिलिट्री कैंपेन जो था इसका बहुत ज्यादा वास्ट रहा, ये आप देख सकते हैं. Now here we are, like I told you earlier also, that we will be focusing on Akbar's policy in detail. ये तो अकबर की मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में था. But now let me take up a small topic that talks about Mughal relation with the other rulers. तो मिलिट्री कैंपेन्स तो हम देख ही रहे हैं कि कैसे ये बाबर के युद्ध के बारे में पढ़ा, हुमायूं के युद्ध के बारे में पढ़ा, हम अकबर के युद्ध के बारे में भी, एक्सपेंशन के बारे में भी पढ़ रहे हैं. बट लेट अस बी ऑन पेज नंबर 52 एंड रीड द पैराग्राफ विच रीड्स अबाउट द मुगल रिलेशन विद द अदर रूलर्स. Mughal have been campaigned constantly against the rulers who refused to accept देयर अथॉरिटी. जो भी उनकी अथॉरिटी नहीं मानता था, वो अपना राज्य फैलाना चाहते थे, जो भी उनकी अथॉरिटी नहीं मानता था उनके साथ वो युद्ध करते थे. बट एज द मुगल बिकेम पावरफुल, मेनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन देम वॉलेंट्री. लेकिन कई राजा ऐसे भी हुए जिन्होंने सोचा कि युद्ध से कोई फायदा नहीं है और वॉलेंट्री जो है हम इनके साथ जुड़ जाएं, क्योंकि मुगल्स ने जो था एक इनिशिएटिव लिया कि हम आपके साथ दोस्ताना सलूक भी रखना चाहते हैं. दे हैव एनालाइज, दे वर वेरी डिप्लोमेटिक इन दिस थिंग ऑल्सो, कि जहां बात प्यार से बने वहां प्यार से बना लो, नहीं तो युद्ध तो करना ही करना है. कब्जा तो उन्होंने एनेक्सर तो उन्होंने करना ही करना था. तो वी गेट टू नो दैट ये मित्रतापूर्ण जो उनका एक फोकस था कि जो फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाहते थे, उनमें ये क्या करते थे, दे कीप ऑन मैरिंग द डॉटर ऑफ द अदर किंग्स. लाइक राजपूत्स आर गुड एग्जांपल ऑफ दिस. मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिली एंड रिसीव्ड हाई पोजीशंस. बट राजपूत में सबने ऐसा नहीं किया. राजपूत में ऐसे राजा भी हुए जिन्होंने अंत तक मुगल एम्पायर का विरोध किया और उनके साथ हाथ नहीं मिलाया. दे ऑलवेज कंसिडर देम एज इन्वेडर्स एंड दे कीप ऑन फाइटिंग फॉर देयर ओन कंट्री. बट अगर हम मेन मुगल मैरिजेस की बात करें तो द मदर ऑफ जहांगीर वॉज अ कछवा प्रिंसेस, डॉटर ऑफ राजपूत रूलर ऑफ अमेर. जोधा और अकबर के बारे में हम सब देख चुके हैं. देयर आर मेनी हिस्टोरिकल epics and movies being made on their relationship. Then the mother of Shahjahan was a Rathod princess, the daughter of Rajput ruler from Mebar, that was from Jodhpur. तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत सारे राजपूत किंग्स ने अपनी डॉटर की मैरिज की थी और एक फ्रेंडली एसोसिएशन मुगल्स के साथ बनाया था. The Sisodia Rajput refused to accept Mughal authority for a long time. वो प्रोटेस्ट करते रहे. Once defeated, वो हार भी गए. However, they were honorably treated by the Mughals, given their land वतन back as a assignment. वतन जागीर की तरह उन्हें वापस दिया. हालांकि होल्ड उन्होंने रखा उसके ऊपर भी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वापस देके उनके साथ एक कॉर्डियल रिलेशन उन्होंने बाद में सिसोदियाज के साथ एस्टैब्लिश कर लिए. तो दिस वॉज द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग but not humiliating their opponents, which enabled the Mughals to extend their influence over many kings and many chiefs. सो लेटर ऑन इन हिस्ट्री, जैसे अकबर ने बड़ा दोस्ताना व्यवहार किया लोगों के साथ, इस चीज को बिल्डअप करने की कोशिश की. औरंगजेब मुगल डायनेस्टी के अंदर एक ऐसे एम्पायर आए जिन्होंने बहुत ही ज्यादा सप्रेसिव मोड को यूज किया. उन्होंने ये फ्रेंडली विद अदर के रूलर्स इस वाली पॉलिसी को बिल्कुल निग्लेक्ट किया. तो वी विल रीड अबाउट औरंगजेब ऑल्सो, बट हेयर वी आर फोकसिंग ऑन अकबर. सो एज वी हैव गॉन थ्रू द मिलिट्री कैंपेन्स ऑफ अकबर,
let's see some thing more about Akbar. Akbar was always considered a very efficient ruler. Apart from his military skills, we need to discuss his other roles as a ruler too. We need to understand how he get this title of Akbar the Great King. In this and for this we need to revisit the history. And Akbar has ordered his close friend Abul Fazl to write a 3-volume history of his reign. See, you need to see the importance of Abul Fazl also. Abul Fazl जो थे उनके दोस्त थे और 3 volumes उन्होंने लिखा. First volume dealt with Akbar's ancestors. Second volume he recorded the event of Akbar reign, and then in third is Aine Akbari. It deals with Akbar's administration, Akbar's household, and his army campaigns and his relationship with other people. So you will read about this Abul Fazl and his books he wrote on page number 53. Just be on page number 53 and we will read about this paragraph, Akbarnama and Aine Akbari. Akbar ordered one of his close friends and courtiers, Abul Fazl, to write a history of his reign. Abul Fazl wrote a 3-volume history of Akbar's reign titled Akbarnama. तो आपको क्वेश्चन आ सकता है who wrote Akbarnama, या आपको आ सकता है who wrote Aine Akbari. तो आपको पता होना चाहिए कि Abul Fazl था. We will read about Akbar's policy in detail. Let's read it out. A closer look on Akbar's policy. Abul Fazl explained that the empire was divided into 2 provinces called Subas. अब जो राज्य था इतना फैल चुका था कि उसको प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक ही जगह से बैठ के कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट था. तो उसने प्रोविंसेस को डिवाइड कर दिया सूबा में, और ईच सूबा वाज गवर्न्ड बाय अ सूबेदार who carried out both political and military function. Each province had a financial officer और दीवान होता था for the maintenance of peace and order in his province. The सूबेदार was supported by other officers. आपको क्वेश्चन आ सकता है who is a सूबेदार? सूबेदार is the governor of a सूबा. Right? The सूबेदार was supported by other officials such as military payment. बख्शी बोलते थे, आपको ये पता होना चाहिए. वो is a बख्शी. बख्शी is a military paymaster. The minister in charge of religious and charitable patronage was called Sadar. Military commander was Fauzdar and the town police commander was called Kotwal. तो आपको पता होना चाहिए, आपको क्वेश्चन आ सकता है what was the town police officer या town police commander called? So you must know it was Kotwal. Right? Akbar's nobles commanded large armies and had access to large amount of revenue. While they were loyal to the empire, functioned efficiently, but by the end of the 17th century, many nobles had built independent network of their own. Their loyalty to the empire was weakened by their own self-interest. अकबर के टाइम में आप पढ़ेंगे कि बहुत सारे जो इसने गवर्नर्स अपॉइंट किए थे, वो गवर्नर्स जो थे वो इसको बहुत ज्यादा हेल्प करते रहे. लेकिन धीरे धीरे हम ये पढ़ेंगे मुगल डायनेस्टी के अंदर, जब हम लोग 17th सेंचुरी में पढ़ जाएंगे, कि ये नोबल्स इतने ज्यादा पावरफुल हो गए कि इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया और ये अब अपने एम्पायर के लिए लॉयल नहीं रहे और अपने इंटरेस्ट को जो है देखते रहे. बट दिस थिंग वी विल टेक अप लेटर ऑन व्हेन वी विल रीड अबाउट द 17th सेंचुरी इन द हायर क्लासेस. यहाँ पर आपको ये फोकस करना है कि अकबर ने अपनी प्रोविंसेस को जो सूबाज में डिवाइड किया था, एंड द सूबेदार्स वर कंट्रोलिंग दैट along with many other officials who were like बख्शीज, फौजदार, कोतवाल, सदर. तो उनके अलग अलग जो थे अपने अलग अलग उनके डिपार्टमेंट्स थे जिनको वो टेक केयर करते थे. तो दिस वॉज हाउ ही वॉज डीलिंग विद द प्रोविंसेस, हाउ ही वॉज डीलिंग विद द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस, किस तरह से वो कर रहा था. नाउ नेक्स्ट वी नीड टू फोकस व्हेन वी टॉक अबाउट अकबर, देयर आर टू policies we need to focus on Akbar because these are very very important. One of these policy was Sulh-e-Khul, where he talked about ethic
honesty and peace, and this was followed later by Jahangir and Shahjahan also, जहाँ पर भी एथिक की, ऑनेस्टी और पीस की, शांति की बात कर रहे हैं, और ये चीज कंटिन्यू रही शाहजहां तक. Then his another policy was इबादत खाना. Ibadat Khana was a place where people from different religion came under one place. Akbar was interested in knowing about different culture. He bring people from different cultures like Buddhist, Jew, Brahmins, Ulmas under one place. He emphasized that all these rituals and dogmas would be free from any bigots and free from any kind of religious intolerance. आपको मतलब पता होना चाहिए what is the meaning of dogma, what is the meaning of bigot. Bigot बोलते हैं एक इंसान को जो कि दूसरे धर्म की जो रिलीजन्स हैं, कल्चर्स हैं, उनको वो सहन नहीं कर सकता. तो वो खुद दिखा रहा था अपने उसमें कि देखो आई एम लाइक सो मच टॉलरेंट. एंड डॉगमास क्या होते हैं? डॉगमास होते हैं जिसको आप बिना क्वेश्चन किए, बिना सवाल किए आप धर्म को बस आपके धर्म में तो उसको अपनाते. तो वो कहता था कि सोसाइटी जो है, जो वो किसी भी तरह के डॉगमा से और बायगॉट जो लोग हैं जो एक दूसरे को सहन नहीं करते, उस चीज से जो है वो फ्री होनी चाहिए. तो जब हम अकबर के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी ये जो 2 पॉलिसीज हैं विच आई विल सजेस्ट रीड पेज नंबर 54 and 55 in detail. You will understand what is sulikul and what is like ibadat khana. This is very important from question point of view also, examination point of view also. So here we have seen in detail about the military campaigns, about the religious policies of Akbar, how he has divided the empire into provinces called subas. So उसकी administration और military campaigns के बारे में हमने देखा. This is all for this video. Next we will be taking up other Mughal empires starting from Jahangir, but that we will do in the next chapter. So that is all for this video. Do understand the video, listen to the video, do read the book, and I will be taking your doubt class today. I would like to have all your doubts regarding this particular chapter in that class. So bye for now, and take care of yourself.